was a time when many things in India felt impossible. Owning a car felt like a lifetime goal. Traveling by air was a luxury. Starting a business felt risky. And earning big felt reserved for a chosen few. But then India changed. India did not grow slowly, it leaped. From broken roads to expressways. From waiting lines to instant digital payments. From landlines to smartphones. From job seekers to startup creators. From slow connections to high-speed internet. And this transformation did not happen by chance. It happened because people acted. Because some people saw the change early and decided to move with it. Today, once again, India is standing at the edge of another massive shift. A shift in health, entrepreneurship and self-reliance. A shift in ambitions turning into opportunity. A shift in women turning ambition into enterprise. Because history tells us one thing very clearly. Opportunities do not wait. They reward those who move first. 22 years ago, when most people had never heard the words direct selling, health and wellness economy, or Make in India, a visionary believed that the future belonged to those who empower people, not just employ them. That belief became Vestige, a company built on one powerful idea, that an ordinary person can create extraordinary success, not through luck, but through the right platform and support. While India was growing, Vestige was growing silently with it. From a small beginning to a global presence with millions of distributors, 300 plus world-class products, and new millionaires being created every single month. What started as a small idea has now become one of the industry's largest success movements. When we started Vestige 22 years ago, many people said this idea would not survive even 1 year. Some even smiled at the name Vestige, wondering how far it could really go. But I believed that if the intention is right, the system is strong, the purpose is clear, time itself becomes your biggest proof. Today, as we celebrate 22 years, that belief stands validated. Vestige is not only thriving, it has become a flag bearer of Indian direct selling to the world. What excites me most is not our journey so far, but the journey ahead. As we move towards becoming a billion-dollar organization by 2030, the real opportunity lies with those who are walking this path with us today. This is the time to look ahead with belief, to act with confidence, to think beyond limits, activate the billion-dollar mindset. Because the future belongs to those who never stop believing, even when others doubt it. Wish you well. Vestige, you do not start from scratch. You step onto a platform already built for your success, with advanced manufacturing facilities, global quality systems, and technology-driven infrastructure working silently in your favor. A powerful education ecosystem guiding you, training you, and empowering you at every step. And a diverse portfolio across health and wellness, premium skincare, agriculture, color cosmetics, and more, giving you products people already need, trust, and use. This is not a company beginning its journey. This is a legacy ready for its biggest leap.
Activate the billion-dollar mindset. $1 billion is not just a number, it is a way of thinking. Thinking beyond limits. Acting before others. Believing before the world believes. Just imagine, when Vestige becomes a billion-dollar company by 2030, what happens to the people who are part of this journey today? Today's income becomes tomorrow's wealth. 1 lakh becomes 10 lakhs. 10 lakhs becomes 1 crore. 1 crore becomes 10 crores. From a few VMCMs to 1,000 plus VMCMs and 1 lakh plus women entrepreneurs. This is how growth works. This is that moment. The ship is rising. And Vestige is ready for its next phase of growth. The only question is, are you ready to be part of this growth? Or will you watch others grow? Because opportunities like this do not come twice. That is why it is not later. It is not someday. It is now. It is now or never. Activate the billion-dollar mindset. Okay, good morning, everybody. ओके, दो चीजें पहले करेंगे हम। सबसे पहले अपने कैमरास हम ओपन करेंगे। एंड दूसरी बात, आपके पास अगर नोटबुक है और पेन है, अगर नहीं है तो आपको मैं कुछ समय देता हूं, फटाफट नोटबुक और पेन लेके आइए, बिकॉज बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको आज यहाँ पर मिलेगी। एंड मुझे नहीं लगता है कि आपको वो मिस करनी चाहिए। सो टू थिंग्स, अपने कैमरास शुरू कर दो एंड रेडी हो जाइए पेन और नोटबुक के साथ, बिकॉज वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू lot of strategies here. जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर सके, दे कैन ज्वाइन फ्रॉम यूट्यूब, बिकॉज यहां पर आई थिंक सो 500 ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। द रेस्ट कैन ज्वाइन ऑन यूट्यूब। ओके, रेडी? ग्रेट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। और जैसे आप सब जानते हैं कि वेस्टीज ने एक तहलका मचा दिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और बहुत सारे पुराने लोग, बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे लोग अभी वेस्टीज को फिर से एक नई तरह से देख रहे हैं। और बहुत सारी, ये जो भी हुआ है जून के बाद में, बहुत सारे इंक्वायरीज आए हैं और लोग सोच रहे हैं कि ये किस तरह से काम करेगा, ये मैचिंग क्लब इंसेंटिव, और ये इंडस्ट्री में क्या एक नया रिवोल्यूशन लेके आएगा, उसके बारे में सोच रहे। बट जो लोग सोच रहे हैं वो तो सिर्फ सोचते रह गए, वेस्टीज ने वो करके दिखाया है। सो ये एमसीआई में हमें कैसे काम करना है, जो करंट प्रमोशन है उस प्रमोशंस के ऊपर हम अपना कैसा फायदा उठा सकते हैं, यही सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और जो कुछ भी हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस है, वही सारे एक्सपीरियंसेस हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बेसिक्स हमारे क्लियर है, लेकिन इस एमसीआई मैचिंग क्लब इंसेंटिव को हम किस तरह से अपना डबल इंजन बना सकते हैं, ताकि हमारी ग्रोथ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो और हमारे ग्रुप की ग्रोथ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा एक माइंडसेट बना दिया गया है कि $1 बिलियन कंपनी बाय 2030
ये हमारे एमडी साहब ने ये एक मैसेज दिया है ईच एंड ईच वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और ये अगर हम सोचे तो ये उससे पहले भी हो सकता है, बट यस उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग माइंडसेट्स, बेसिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये जो कुछ भी कंपनी के जो अनाउंसमेंट है, कंपनी के साथ अलाइनमेंट में रह के काम करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि पिछले जो एक महीने में जो कुछ भी हुआ उसके अंदर कुछ हिकअप्स आए थे, बट जब भी ट्रांजिशन पीरियड होता है, व्हेन वी मूव समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब भी वो ट्रांजिशन पीरियड आता है, देर आर बाउंड टू बी सम, कुछ ना कुछ आगे पीछे हो ही जाता है, कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ चीजें ऐड करने के लिए रह जाती है। बट उसके बाद में, ट्रांजिशन पीरियड के बाद में जो जर्नी होती है, बिलीव मी वो बहुत अच्छी और एक पीसफुल जर्नी होती है। सो वेस्टीज ने ये करके दिखाया है, जो पहला स्टेप लिया है टुवर्ड्स बिकमिंग अ बिलियन डॉलर कंपनी बाय 2030। बिलियन डॉलर यानी कि ऑलमोस्ट 9,400 करोड़ का टर्नओवर वेस्टीज करना चाहती है। और जैसे वीडियो में भी देखा कि अगर हम इतना कर पाए, और जो लोग वेस्टीज में इसी तरह से काम करते, इसी पैशन के साथ, इसी जील के साथ अगर काम करते, तो आप सोच सकते हैं कि जो आज लाख रुपए कमा रहा है वो 10 लाख के ऊपर जाएगा, जो 10 लाख कमा रहा है वो 1 करोड़ के ऊपर जाएगा, और जो 1 करोड़ कमा रहा है वो 10 करोड़ के ऊपर जाएगा। यही कंपनी का थॉट प्रोसेस है, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटर्स फर्स्ट, ये उन्होंने रखा है। और इसी के साथ हमने ये मैचिंग क्लब इंसेंटिव लॉन्च किया है, जिससे हमारे ग्रुप को एक मोमेंटम मिल जाता है, एक नेटवर्क में एक तेजी मिलने के लिए ही ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले फिर से एक चीज कहना चाहूंगा। अगेन, थिंक पॉजिटिव, इट इज ऑल अबाउट, द गेम इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर $1 बिलियन को हमको टच करना है तो हमें उस तरह से हमारी प्रिपरेशन भी आज से करनी पड़ेगी। वेस्टीज तो कर ही रहा है, लेकिन हमें भी इंटरनली हमारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इंटरनली की बात कर रहा हूं मैं, योर वे ऑफ थिंकिंग, योर वे ऑफ शोइंग द प्लान, योर वे ऑफ एजुकेशन, योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग, एवरीथिंग इसके अंदर और अच्छा और बेटर, और किस तरह से आप एक्सेलेंट बन सकते, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तभी हम सब मिलके एक बिलियन डॉलर का जो सपना है वो हम पूरा कर सकते हैं, राइट? सो let me share with you my presentation. ओके, मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपरली? अगर यस तो प्लीज अपना थम्स अप दिखा दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि ये प्रॉपर हो रहा है। इज इट विजिबल? या आप चैट में लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके करके। ओके, ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ठीक है। सो स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी एमसीआई के लिए, मैचिंग क्लब इंसेंटिव के लिए, और जो करंट प्रमोशन डाले हैं उस प्रमोशन का फायदा हम कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको बैकवर्ड लेके जाऊंगा यहां पर, ताकि हम समझ सके कि क्यों हमने मैचिंग क्लब इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किया है। Matching club incentive was primarily introduced to attract new joinings in our team and help them to increase their team size. जी हाँ, वेस्टीज की टीम साइज, हम और आपकी सबकी टीम साइज बढ़े, इसीलिए ये मैचिंग क्लब इंसेंटिव लेके आए हैं। आप सब जानते हैं इस मैचिंग क्लब इंसेंटिव में जब हम एक पेयर बनाते हैं, यानी कि 300 पीवी ऑन वन साइड एंड 300 पीवी ऑन अनदर साइड, हमें उस पेयर का एक 900 रुपीज का एक बोनस मिल जाता है, जिसे हम मैचिंग क्लब इंसेंटिव कहते हैं। सो बेसिकली हमने जो इम्प्रोवाइज किया है वो इम्प्रोवाइज किया है कि जहां पर जो भी न्यू ज्वाइनिंग्स आती है, उस न्यू ज्वाइनिंग्स को उन्हें भी फायदा हो और उन्हें भी मोटिवेशन मिले और न्यू ज्वाइनिंग्स लाने के लिए। सो ये हमारा प्राइमरी रीजन था। इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी डिबेट्स हुई, और उसके बाद में जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो कंपनी ने हम सबके सामने रखा है। टीम साइज, जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में टीम साइज आपकी जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा आपका चेक बनता है। आप कोई भी टीम साइज आप उठा लो, आपके नेटवर्क में देख लो, यहां पे बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी हैं जिनके पास ह्यूज नेटवर्क्स है। आप देखना कि आपके नेटवर्क में पीवी तभी बढ़ता है जब आपकी टीम साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। सो द इक्वेशन इज वेरी सिंपल, कि जितना बड़ा आपका टीम साइज होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट का कंजम्पशन होगा,
और जितना बड़ा प्रोडक्ट का कंजम्पशन होगा उतने आपको बड़े चेक्स मिलेंगे। और जैसे ही हायर चेक्स मिलते हैं तो आप अपने सपने के एक स्टेप करीब पहुंच जाते हैं। तो इक्वेशन वेरी सिंपल है कि मोर बिगर टीम साइज will lead to more business volumes, more PV, and more PV will lead to extraordinary checks. So Vestige is one of the best healthcare, personal care, agri products and lot of other range. But हमारी जो बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हमारे बहुत ही अच्छे हैं, हमारे एग्री प्रोडक्ट्स भी वेल एक्सेप्टेड है अमंग्स ऑल फार्मर्स। सो हमारी जो प्रोडक्ट की रेंज है उसके अंदर हमें कोई देखने वाली बात नहीं है, बिकॉज वेस्टीज ने आज नहीं लेकिन कई साल से प्रूव कर दिया है कि वी हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स, हमारे प्रोडक्ट की जो रेंज है वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रेंज है। और इसी रेंज के थ्रू हम 22 साल से लोगों को सर्व कर रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज। जी हाँ, हम 22 साल से ये सर्विंग का काम कर रहे हैं, बिकॉज हर एक आदमी को इस तरह के सप्लीमेंट्स की आज के दिन में जरूरत है। और जैसे आप सबको पता है कि आफ्टर कोविड हमारा पूरा ट्रेंड बदल गया है। पीपल वांट टू स्टे हेल्दी, पीपल वांट टू बिकम हेल्दी, पीपल वांट टू बिकम फिट, एंड दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स। आपने इससे पहले इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो इससे पहले आपने कभी भी, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं, आपने कभी भी कोई हेल्थ सप्लीमेंट का कोई रील नहीं देखी होगी। लेकिन आज अगर हम देखें तो हर कोई इंस्टाग्राम में अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर भी अपनी रील्स बनाते हैं, सप्लीमेंट्स के बारे में कहते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये सप्लीमेंट्स का जो जो बिजनेस है या ये सप्लीमेंट्स है, ये आज का बिजनेस नहीं है, ये तो कई साल से विदेशों में चल रहा है। हम जब भी विदेश जाते थे तो वहां पे तो काउंटर्स होते थे, इवन इन मॉल्स काउंटर्स होते थे कि जहां पर सप्लीमेंट्स वो लोग सेल करते थे। और यही एक वन ऑफ द रीजन था कि अगर आप विदेश में देखें तो लोग ज्यादा फिट होते थे, लोगों के पास अवेयरनेस होती थी अपने हेल्थ के लिए। जी हाँ, वो बहुत अवेयर होते थे अपने हेल्थ के लिए, एंड दैट इज द रीजन दैट दे हैव कम अप विद सो मेनी सप्लीमेंट्स। और इंडिया में यही चीज रिपीट होने वाली है। आज भी हमने पूरा इंडिया का मार्केट केटर नहीं किया है या कवर नहीं किया है, आज भी हमारे पास भयंकर बड़ा स्कोप है। सो आवर प्रोडक्ट्स हैव ऑलवेज बीन अ लाइफ चेंजर एंड लाइफ सेवर टू सो मेनी इंडिविजुअल्स। जी हाँ, पर्सनली मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं कि जहां पर लोगों को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता है, बट बाय गिविंग वेस्टीज सप्लीमेंट्स दे फील बेटर, उनके लाइफ में कुछ अच्छा होने लगा है। तो ऐसे कई केसेस है। सो दे आर नॉट ओनली लाइफ चेंजर बट लाइफ सेवर टू। सो एक्सेलेंट हमारे सप्लीमेंट्स है, एक्सेलेंट हमारे न्यूट्रिसिटिकल प्रोडक्ट्स है, एक्सेलेंट हमारे पास वेट लॉस के प्रोडक्ट है। और हमने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को टाइम से टाइम में अपडेट किया है। जी हाँ, हमने कंटिन्यूस इस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च किया है, डेवलपमेंट किया है। और हमने ये थॉट प्रोसेस भी रखा है कि इंडियन कंज्यूमर्स को किस तरह से प्रोडक्ट्स चाहिए, इंडियन कंज्यूमर की प्राइस मेंटालिटी क्या है, और उसी प्राइस मेंटालिटी के हिसाब से हमने प्रोडक्ट्स को हमेशा अपडेट किया है, अपग्रेड किया है। टेकिंग यू फर्दर, वी आर द ओनली कंपनी, जी हाँ, वी आर द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया हु हैव गॉट देयर प्रोडक्ट्स क्लिनिकली टेस्टेड। जी हाँ, हमारी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल का सर्टिफिकेशन भी हमें मिला है। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और हमारे लिए बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि हमारे प्रोडक्ट्स क्लिनिकली प्रूवन है, क्लिनिकली टेस्टेड है। आज के दिन में इंडिया का कोई भी कानून ये नहीं कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को तभी सेल कर सकते जब आपके पास क्लिनिकल ट्रायल का सर्टिफिकेट है। बट वेस्टीज हैज गॉन वन स्टेप अहेड। कानून नहीं है लेकिन फिर भी हमने अपने प्रोडक्ट्स को क्लिनिकली प्रूवन और क्लिनिकली टेस्टेड का हमारे पास सर्टिफिकेशन है। जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन इफ वी कैन रीच टू सो मेनी पीपल एंड प्लेसेस ऑल अक्रॉस इंडिया। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करें तो हमारे बिजनेस वॉल्यूम्स तो दूर की बात है, लेकिन हमारे लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है, बिकॉज वी आर सर्विंग द कम्युनिटी, वी आर सर्विंग द सोसाइटी, एंड उसके अंदर जो हैप्पीनेस है वो आपको कहीं नहीं मिल सकती है। और आज के दिन में अगर हम देखें तो पीपल नीड सॉल्यूशन फॉर देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स। जी हाँ, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन हैविंग अ गुड हेल्थ।
अब पहले वाली बात नहीं रही। क्यों पहले वाली बात नहीं रही? पहले वाली सोच इसलिए नहीं रही क्योंकि आज के दिन में हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है। पीपल आर नीड पीपल नीड सॉल्यूशन फॉर देयर हेल्थ प्रोडक्ट्स, बिकॉज आज के दिन में जैसे मैंने कहा कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और न्यूट्रिशन नहीं मिलने के वजह से सिंपल प्रॉब्लम्स ये हो रहे हैं कि लोगों की हेल्थ में कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। सेकेंडली, इंक्लूडिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यानी कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है लोगों के पास। और लोग आज के दिन में हमेशा जो लोग चाहते हैं कि दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ पॉजिटिव कम्युनिटी। एंड खुश खुश यानी कि अच्छी बात यह है कि वेस्टीज के पास सारी चीजें हैं जो आप लोग चाहते हैं। लोगों को अच्छी हेल्थ नहीं देते, लेकिन हम उनके साथ उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के ऊपर भी सॉल्व करते हैं। एंड उनके साथ साथ एक पॉजिटिव कम्युनिटी में हमें उनको 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 इंट्रोड्यूस करने का भी मौका मिलता है। द ओनली थिंग दैट वी नीड इज टू रीच टू मोर पीपल। सो ये बेसिकली एक बैकग्राउंड था, लेकिन हम और लोगों को कैसे रीच कर पाएंगे? इसीलिए ये मैचिंग क्लब इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किया है कंपनी ने। Matching club incentive was introduced to reach more people and create a win-win situation for the distributors and the company both। जी हाँ, ये करने का मेन रीजन यही था कि वेस्टीज के इतने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाए तो उसका क्या फायदा। लेकिन मैचिंग क्लब इंसेंटिव इंट्रोड्यूस करने के बाद में हमें यह लगता है कि इस इंसेंटिव्स के थ्रू हम ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे, ज्यादा लोगों को बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। सो द करंट प्रमोशंस विल नॉट ओनली हेल्प यू टू जंप टू अ हायर लेवल, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्रिएट अ स्टेबल बिजनेस। जी हाँ, ये करंट प्रमोशन हमने इसीलिए डाले गए हैं ताकि आप लोगों को सिर्फ एक लेवल जंप करने का काम ना हो, बट आप लोगों का एक स्टेबल फाउंडेशन बने। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ लेनी है, अगर आपको लगता है कि बिजनेस में मुझे ग्रो करना है, तो जब तक आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे ना, तो आपके बिजनेस में कभी भी ग्रोथ नहीं आएंगी। मेरा मतलब है फाउंडेशन स्ट्रांग करने का मतलब है जो बेसिक जो फाउंडेशन है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम हमेशा बिजनेस हमारा अच्छे फाउंडेशन के ऊपर हम उसके ऊपर एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। What I mean simply is by taking shortcuts, by taking short routes will never lead to a strong foundation। So हमारा strong foundation बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और ये प्रमोशंस जो करंट प्रमोशंस दिए हैं जुलाई महीने के लिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए। सो वी एज डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको ये प्रमोशन सबसे पहले तो समझना है, प्लान करना है एंड स्ट्रेटेजाइज करना है अपने बिजनेस को इस तरह से कि ये सारे प्रमोशंस का हम ज्यादा फायदा ले सके और इस सारे प्रमोशन से हम अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कर सके ताकि हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो। तो ये क्वेश्चन है कि भाई किस तरह से हम ये सारे फाउंडेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं और साथ साथ में इस प्रमोशन का फायदा लेके किस तरह से हम ग्रोथ कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली में हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा आपको ले चलता हूं स्ट्रैटेजी के ऊपर। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम सिंपल स्ट्रैटेजीज व्हिच कैन हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस एंड क्रिएट मोर इनकम्स एंड एट द सेम टाइम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का आपको नींव रखने के लिए बहुत काम आएगी ये सारी स्ट्रैटेजीज। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कि फर्स्ट इज यू टेक अ डिसीजन। डिसीजन इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप फॉर अचीवमेंट। जी हाँ, अगर आपको इस प्रमोशन में काम करना है, अगर आपको लगता है कि इस मैचिंग क्लब इंसेंटिव्स में मुझे काम करना है, तो सबसे पहले तो डिसीजन लेना है कि मैं इस एमसीआई को प्रॉपर तरीके से प्लान करके अपने बिजनेस मॉडल को, अपने नेटवर्क को आगे ले चलूंगा। If you have taken a decision, then take a decision with your team since this promotion is interlocked with your team member। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जो कंपनी ने इस महीने जो प्रमोशंस दिए उसके ऊपर, और ये प्रमोशन से हम अपने बिजनेस मॉडल को भी बेहतर कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखिए कि ये प्रमोशन है, ये इंटरलॉक्ड है। इंटरलॉक का मतलब है कि ये आपके और आपके डाउनलाइन के
यानी कि एक दूसरे के ऊपर आप निर्भर है, इस तरह का प्रमोशन है। यानी कि आप और आपका डाउनलाइन अगर दोनों प्लान करके, या आपके टीम मेंबर के साथ अगर आप प्लान करके इस प्रमोशन को ले जाते आगे, तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड साथ साथ में आपका फाउंडेशन उतना ही स्ट्रांग होगा। सो इफ टुगेदर एज अ टीम इफ यू वर्क, देन एवरीबडी विल अचीव मोर। जी हाँ, यहां पर ये प्रमोशन इतना स्मार्ट वे से डाला गया है, बिकॉज ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि दे वांट टू वर्क अलोन, एक लोन वुल्फ के तरह उनको काम करना होता है कि मैं अकेले काम करूंगा, मैं अकेले बहुत हूं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप कुछ नहीं हो जब तक आपके पास टीम नहीं है। सो वर्किंग विद योर टीम इज अनदर वे, is the best way to get success in your business in the networks. So टीम के साथ अगर काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट्स आएगा, और मैं हमेशा कहता हूं कि टीम के साथ करेंगे तो ज्यादा लेवरेज मिलेगा आपको बिजनेस एक्सपांशन के लिए। सो ये प्रमोशन इस तरह से इंटरलॉक किए है कि आप भी टीम के ऊपर निर्भर रहते हैं और आपकी टीम भी आपके ऊपर निर्भर रहती है। सो इट इज बोथ वेज, एंड टीम का मतलब ही ये है कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रमोशन में हम क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलके एज अ बडी, एज अपलाइन डाउनलाइन मिलके अगर काम करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो प्रमोशन को समझ लीजिए कि ये प्रमोशन क्या है। मैं बात कर रहा हूं जुलाई में जो कंपनी ने जो प्रमोशन डाले उसकी बात कर रहा हूं, कि जो भी व्यक्ति 5% से लेके गोल्ड डायरेक्टर तक ही ये प्रमोशन है। और गोल्ड डायरेक्टर यानी कि 5% से लेके परमानेंट लेवल गोल्ड डायरेक्टर, उनके लिए ही है प्रमोशन। उसके ऊपर के लेवल वाले के लिए ये प्रमोशन नहीं है। बट उसके ऊपर वाले के जो जो गोल्ड से ऊपर है, वो अपनी नई टीम सेट करके उस नई टीम में ये प्रमोशन जरूर डाल सकते हैं। सो प्रमोशन क्या है ये पहले समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, यू नीड टू डिसाइड फर्स्ट वेदर यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन और यू वांट टू स्टे आउट ऑफ इट। बिकॉज बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, अरे प्रमोशन डाला नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, कंपनी तो डालती है प्रमोशन, कंपनी का काम है, हमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है। सो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते वो आपकी विषय, बट अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो एक स्ट्रांग डिसीजन लेके पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप अपने नेटवर्क को सही तरीके से ग्रो कर सके। तो देखते हैं प्रमोशन क्या है। जब आप 5 पेयर करते हैं तो आपको 5,000 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर मिलता है। ये एक्स्ट्रा मिलता है, जो आपको पेयर का बोनस मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा ये एक्स्ट्रा मिलता है। जब आप 5 पेयर करते हैं तो यू गेट अ प्रोडक्ट वाउचर ऑफ 5,000 रुपीज। जब आप 15 पेयर करते हैं, जी हाँ 15 पेयर करते हैं, तो ट्रिप टू गोवा मिलता है। ये 3 days और 2 nights का ट्रिप है। ये सिंगल टिकट मिलेगा आपको गोवा का। अगर आप 25 पेयर करते हैं तो ये फिर से आपको गोवा का ट्रिप मिलेगा, लेकिन इस बार आपकी 2 टिकट्स मिलेंगी, यानी कि आप एज अ कपल उस गोवा ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। और यदि आप 50 पेयर करते हैं तो यू गेट अ ट्रिप टू थाईलैंड विच इज 4 days and 3 nights। जी हाँ, 4 days and 3 nights अ ट्रिप टू थाईलैंड, विच इज अगेन अ वेरी एक्साइटिंग प्रमोशन टू बी इनटू, ताकि आप अपना नेटवर्क भी बना सके, नेटवर्क से पैसे भी कमा सके, और ये थाईलैंड का ट्रिप भी ले सके। ये एब्सोल्युटली फ्री है, ये कंपनी की तरफ से। सिर्फ आपको जो गोवा जाने का है वो पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा, बाकी एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री। तो आगे चलते हैं, अगर हम इस प्रमोशन की बात करते हैं, सो जैसे मैंने कहा था टीम के साथ ये सारी चीजें इंटरलॉक्ड है। व्हाई आई एम टेलिंग यू इंटरलॉक, बिकॉज ये हम आगे देखेंगे। सो इफ योर डाउनलाइन, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। इफ योर डाउनलाइन इज टारगेटिंग 5 पेयर्स, यानी कि अगर आपका डाउनलाइन कहता है कि 5 पेयर तो सर मैं ही कर लूंगा, तो आपका काम होगा कि बाकी के अलग से आप बाकी के पेयर्स निकालें, 15 पेयर्स निकालें, ताकि आपका डाउनलाइन भी क्वालिफाई हो जाए और आप भी क्वालिफाई हो जाए। अगर डाउनलाइन कहता है कि सर 15 पेयर तो मैं ही निकालूंगा, तो आपका टारगेट होना चाहिए रेस्ट ऑफ द ग्रुप से आप 25 पेयर्स कर सके। ये आगे मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। अगर आपका डाउनलाइन अगर 25 पेयर करता है तो आपका टारगेट होना चाहिए 50 के लिए। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू टेक द मोस्ट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रमोशन। ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि इस स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी डाउनलाइन ने 5 पेयर कर दी है,
तो आप अगर बी और सी लेग से या डी और ई लेग से अगर बाकी के पैच 5 पैर करते हैं तो आप भी प्रोडक्ट वाउचर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि डाउनलाइन अपलाइन दोनों के साथ आपको मिलके ये काम करना पड़ेगा, तभी आपकी अचीवमेंट इसमें ज्यादा होगी। तो ये पहला पहला प्रोडक्ट वाउचर का प्रमोशन था। उसी तरह अगर 15 पैर, अगर आपका एक डाउनलाइन 15 पैर कर लेता है तो आपको बी सी एंड डी से अगर आप 15 पैर करते तो आपका डाउनलाइन भी क्वालिफाई हो जाता है और आप भी गोवा के सिंगल टिकट में आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये डाउनलाइन के ऊपर और साथ साथ में आप साइड से करेंगे बी सी एंड डी, यानी कि 5 पैर्स बी से करते हैं या सी से 5 पैर्स करते हैं, डी से 5 पैर करते हैं, या बी सी डी ई एफ जी, ये आपके ऊपर है। बट अगर साइड से अगर 15 पैर हो जाते हैं तो आप और आपके डाउनलाइन को भी ये ट्रिप सिंगल टिकट मिलता है गोवा के लिए। प्लस जो आपको पे आउट मिलेगा, जो पेयर बोनस मिलेगा, वो तो अलग ही होगा। एग्जाम्पल 3 कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक ग्रुप यानी कि एक डाउनलाइन अगर 25 पैर कर लेती है और साइड से अगर आप 25 पैर और कर लेते हैं तो आपको कपल टिकट मिल जाएगा आपको गोवा के लिए। ये प्रमोशन इतना स्मार्ट वे में रखा है क्योंकि यहां पर पता है कि एक ग्रुप तो किसी का स्ट्रांग होता ही है, एक नेटवर्क तो स्ट्रांग हो ही जाता है। लेकिन चैलेंज यहां पर यह है कि जितने आप ज्यादा आपके साइड वॉल्यूम्स या साइड लेग्स में काम करेंगे उतना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। जैसे देखिए, मेरा यहां पर यह कहना है आप लोगों से कि ये जो ट्रिप के अंदर जो भी इंसेंटिव मिलेगा ना वो ठीक है, बट यहां पर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट बात है। और यदि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया और उसके ऊपर आपने एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप गोवा ट्रिप हर महीने ले सकते हैं, हर महीने उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो ये आपका एक फाउंडेशन स्ट्रांग करने का आपको एक जरिया दिया है कंपनी ने, ओवर एंड अबाउट द पेयर बोनस। ये एक एक्सेलरेशन दिया है, ये आपको एक 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 पुश दिया है कंपनी ने, ताकि आप अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सके। इसी तरह अगर 50 पेयर्स आपके एक लाइन में होते हैं, बाकी के लाइन में अगर आप 50 पेयर्स करते हैं तो आपका ए जो डाउन लाइन है वो भी क्वालिफाई हो जाएगा और आप भी क्वालिफाई हो जाएंगे हमारे थाईलैंड ट्रिप के लिए। सो यहां पर शायद मिस्टेक लिखा है, क्वालिफाइज फॉर गोवा ट्रिप, इट इज क्वालिफाइड फॉर थाईलैंड ट्रिप, राइट। सो 50 पेयर्स एंड 50 पेयर्स का आपको दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा। So the strategy for MCI should be, it is very simple कि achieving trip is never the end goal. It only accelerates your business. The main thing which benefits us all. जी हाँ, ये बिजनेस का आपको एक एक्सेलरेशन मिल जाता है। और मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं कि फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि जो लोग आप नए आते हैं और नए जब लोग आते हैं और डे वन से अगर आप उनके फाउंडेशन पे काम करते हैं, डे वन से आप उनको सिस्टम्स के बारे में समझाते हैं, डे वन से आप उनको सिस्टम में डालते हैं, तो फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। और साथ साथ में वो लोग वो पर्टिकुलर पर्सन एक लीडरशिप या अपने ग्रुप को लीड करने के लिए धीरे धीरे रेडी हो जाता है। टू बिकम अ लीडर इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है और ये एक जर्नी है। और जब आप इस जर्नी की शुरुआत करवाते हैं अपने डाउनलाइन को या अपने किसी नए 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 डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो यहां पर एक एक करके जो भी उसको बेनिफिट मिलते हैं वो तो मिलते ही है, लेकिन इसका धीरे 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 वो एक लीडर के अंदर मोल्ड होने की उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, राइट। सो अचीविंग ट्रिप इज नेवर, अगर आप 5% हो या अगर आप अगर सिल्वर हो या आप गोल्ड हो, अगर आप इस प्रमोशन में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको अचीव करना है इस प्रमोशन के हिसाब से, जो मैंने आपको बताया कि डाउनलाइन से अलग में आपको जो भी आपका टारगेट है वो टारगेट को पूरा करें। और आप जब इसको अचीव करते हैं ना तो एक लीड बाय एग्जांपल आप खुद बन जाते हैं। जी हाँ, लीड बाय एग्जांपल खुद बनने का मतलब है कि आप ऑलमोस्ट तैयार हो चुके अपने नेटवर्क को लीड करने के लिए। बिकॉज एक अच्छा डाउनलाइन हमेशा अपने अपलाइन में यही देखता है कि क्या मेरा अपलाइन क्वालिफाई हुआ है, क्या मेरे अपलाइन की ग्रोथ है, क्या मेरे अपलाइन के अंदर क्या मेरा अपलाइन एजुकेशन दे पाता है, क्या मेरा अपलाइन कोई सिस्टम्स को फॉलो करता है। तो जब आप खुद और अपने डाउनलाइंस के साथ अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट होता है। और जैसे ही आपको पता है कि हमारा बिजनेस पूरा डुप्लीकेशन का है,
वो डुप्लीकेशन डाउन द लाइन चलता है, जिसका इम्पैक्ट आपको आपके बिजनेस वॉल्यूम्स के ऊपर मिलता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है नेटवर्किंग में, जो लोग समझते नहीं है। सबसे पहले अपने आप को रेडी करना पड़ेगा प्रमोशन के अंदर, प्रमोशन में जाने के लिए। और जब आप अचीव करते हैं प्रमोशन, यू सेट एन एग्जाम्पल, यस मैंने भी ये चीज करके दिखाई है। और जब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं तो धीरे धीरे डुप्लीकेशन होते होते एक बड़े वॉल्यूम्स के अंदर वो टर्न अप हो जाता है। क्रिएट्स अ पॉजिटिव इफेक्ट इन योर टीम्स। जी हाँ, जब आप साथ में वो गोवा ट्रिप एंजॉय करते होंगे, सोचिए आपने समझो कपल की वो गोवा ट्रिप के लिए आप क्वालिफाई होते हैं, आपकी आप हस्बैंड वाइफ और आपकी डाउन लाइन हस्बैंड वाइफ, तो क्या होता है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एक क्रिएट होता है, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और एक सेंस ऑफ प्राइड हो जाती है जब साथ में आप इस ट्रिप्स को अचीव करते हैं। हेल्प्स टू क्रिएट मोर लीडर्स इन योर टीम। रिमेंबर डुप्लीकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम यू। जी हाँ, हमेशा डुप्लीकेशन जो स्टार्ट होता है आपके टीम में, वो आपसे होता है। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपकी डाउनलाइन भी प्रोडक्ट यूज करते हैं करेंगी। अगर आप प्लान दिखाते हैं तो आपकी डाउनलाइन भी प्लान दिखाएंगी। आप अगर मीटिंग करते तो आपकी डाउनलाइन भी मीटिंग करेंगी। आप अगर प्रमोशन में क्वालिफाई होते तो आपकी डाउनलाइन भी प्रमोशन में क्वालिफाई होगी। लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा करना है, डाउनलाइन को पहले हेल्प करना है, उसको प्रमोट करना है, तो आपका प्रमोशन भी ऊपर हो जाएगा। इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कब बनता है? जब नेटवर्क में सिनर्जी होती है, जब नेटवर्क यूनाइटेड होता है, जब नेटवर्क में चैलेंज देते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग अपलाइन अपने नेटवर्क को लीड करता है, तब जाके एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है ग्रुप का। और वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग तब बनता है तब नेटवर्क में स्टेबिलिटी आती है। सो स्ट्रैटेजी फॉर एमसीआई अगेन, 5 पैर जब आप करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपका 3000 पीवी हो जाता है। 15 पैर अगर होते हैं तो 9000 पीवी हो जाता है। 25 पैर होती है तो 15000 पीवी हो जाता है। यानी कि ये पीवी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर प्रमोशन में काम करेंगे तो ये पीवी बहुत जल्दी चर्न होगा, ये पीवी बहुत जल्दी बढ़ेगा। और अगर 50 पैर्स कर लेते हैं तो कैन यू इमेजिन 30,000 पीवी होता है। अब 30,000 पीवी अगर आप करवाते हैं तो कितने लेग्स के अंदर ऊपर 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 एलओबी मिलेगी, आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों को पैसा मिलेगा। एंड साथ साथ में जो पेयर बोनस आएगा वो तो अलग ही है। मोर पीवी लीड्स टू मोर एलओबी एंड मोर वॉल्यूम्स लीड्स टू मोर पे आउट्स। जी हाँ, सिंपल इक्वेशन इज वेरी सिंपल। और मैं आपको कह रहा हूं कि सब चीजें भूल जाइए। आप अगर एक फोकस से अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये अचीव करना है, या मुझे मेरी ये नई टीम से ये अचीव करवाना है, अगर आप हायर लेवल के ऊपर है, तो ये अगर आप लोगों के अंदर डाल सकेंगे, ये अगर आप ये आइडिया उनके अंदर अगर ट्रांसफर कर पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क और एक बहुत बड़ा ग्रुप आप साइड पे खड़ा कर पाएंगे, जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है उससे उससे उसके अलावा। अगेन द प्रमोशन इज जस्ट अ व्हीकल टू एक्सेलरेट योर बिजनेस। जी हाँ, ये प्रमोशन तो एक बहाना है। मेन बात तो ये है कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं। मेन बात तो ये है कि एक एक्सेलरेशन मिलता है। मेन बात तो ये है कि आपको बोलने के लिए बहाना मिलता है, प्लान दिखाने के अंदर एक्साइटमेंट आती है। ये प्रमोशन तो एक बहाना है। ये तो आप अचीव कर ही लेंगे जो सोचते हैं, बट उसके साइड इफेक्ट्स ये है, अच्छे साइड इफेक्ट्स कहूंगा, अच्छे साइड इफेक्ट्स ये है कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द रियल ट्रूथ लाइज इन डेवलपिंग ट्रू लीडर्स इन योर टीम। लीडरशिप ऐसे ही डेवलप होती है जब आप खुद सबसे पहले तो डिसीजन लेते हैं, जब आप खुद करते हैं, और खुद आप जब डुप्लीकेशन करवाते हैं, तो वैसे ही धीरे 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 आपके नीचे नई लीडरशिप डेवलप होती है। मैं जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि ये एक एक्सेलेंट स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए, आपके साइड ग्रुप्स को बढ़ाने के लिए। यानी कि आपको करना क्या है कि आइडेंटिफाई करने हैं कुछ लोगों से बात करनी है, कुछ नए लोगों से बात करनी है, और उनको ये प्रमोशन के लिए इंट्रोड्यूस करना है। इनको ये प्रमोशन के बारे में बताना है। और यदि ये प्रमोशन के बारे में ये बताते हैं, और फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में अगर 2 या 3 लोग भी अगर थाईलैंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, तो कैन यू इमेजिन 60,000 और 90,000 पीवी आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसके उसको छोड़ के 90,000 पीवी आपको मिल सकता है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमने अभी अभी तक इसके ऊपर सोचा ही नहीं है।
हम सोचते हैं कि नहीं प्रमोशन को क्या करना है, हम सोचते हैं कि यार प्रमोशन हमारे काम का नहीं है। बट अगर हम इसको स्लाइटली अगर डीप में लेके जाए ना, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हम करते हैं। और नेटवर्क में मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, आपका डाउनलाइंस जो भी है ना, ये नहीं बहुत कॉन्फिडेंशियल बात पे आपको कहने जा रहा हूं, आपके डाउनलाइंस आपको तब सुनेंगे जब आप कुछ करके बताएंगे। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, दे वांट टू सी योर परफॉर्मेंस, एंड वंस यू स्टार्ट परफॉर्मिंग दे विल ऑल्सो परफॉर्म। यानी कि आपने नया नेटवर्क बना दिया, फॉर एग्जाम्पल नए नेटवर्क का 15,000 पीवी बन गया, तो कैसा होता है कि घर में कुछ बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे ही एक नया बच्चा आता है तो वो जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे तरफ उनका अटेंशन कम है, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं उनका अटेंशन ले सकूं। सो इट इज वेरी सिंपल कि ये एक बहाना है, प्रमोशन तो एक बहाना है, इससे आप अपने नेटवर्क की फाउंडेशन बहुत मजबूत कर सकते हैं। जी हाँ, ये मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसी तरह काम करता है। सो मेक श्योर कि आप अपने जो नए लोग हैं जिनको आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और ये जुलाई महीने में अभी भी हमारे पास 20 से 22 दिन है, इनके अंदर अगर आप कर सके तो एक वंडर, एक अच्छा मैजिक कर सकते हैं। और अगर आप सोचिए 3 या 4 लोगों को भी अगर थाईलैंड के लिए अगर आप मोटिवेट करके अगर थाईलैंड के ट्रिप के बारे में बताएंगे, तो आपका काम, जुलाई महीने का काम आपका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और उसका रिजल्ट आपको अगस्त में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे भी बड़ा कि आपके पास न्यू क्लास ऑफ पीपल, नए लोग आपको मिल जाएंगे जिनके साथ आप मिलके काम कर सके, राइट। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि सर वही लोगों के साथ काम कर करके हम थक चुके हैं। तो भाई थक चुके हैं तो ये इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? इससे बेटर क्या हो सकता है कि जब आप यहाँ पर नए क्लास ऑफ पीपल लेके आए, नया ग्रुप लेके आए, नए लोगों को आप लेके आए। सो आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर कोई प्रमोशन हो सकता है, राइट। सो करना क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ दोज हुम थिंक यू कैन वर्क विद यू। यार ये बिजनेस में एक अच्छी बात ये है कि यहां पर हम लोगों का चुनाव कर सकते हैं। जी, हम उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल है। सो ये ऑप्शन इतना अच्छा है, मुझे हमेशा ये ऑप्शन इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ, पिक कर सकता हूँ। जिसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं है, आई विल नॉट वर्क विद देम, बट हुम विद जिनके साथ कंफर्टेबल है, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू पिक देम अप, शो देम द प्लान, शो देम द प्रमोशन, और उनको थाईलैंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए पूरा मैं सपोर्ट करूंगा, राइट। मीट देम, एक्सप्लेन देम एंड शो देम द डेमोस, प्रोडक्ट की ताकत बताइए, राइट। प्रमोशन तो है हमारे पास, लेकिन हमारे प्रोडक्ट मैजिकल प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्ट में वो ताकत है कि जहां पर ना कहने वाला भी पर्सन कहता है कि यस मुझे ज्वाइन करना है, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। सो प्रोडक्ट की ताकत बताइए, प्रोडक्ट के डेमो बताइए, और उसके बाद में अगर आप मार्केटिंग प्लान बताते, प्रमोशन बताते, तो मुझे लगता है अगर 10 लोगों को आप बताएंगे तो कम से कम 4 या 5 व्यक्ति ऐसे होंगे कि ये जी हाँ मुझे काम करना है, मुझे ज्वाइन होना है, मुझे थाईलैंड जाना है, मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे इस प्रमोशन में पार्ट लेना है, राइट। यहां पर जब लोग रेडी हो जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन देख के रेडी हो जाते हैं कि हम इस मार्केटिंग प्लान में, हम इस प्रमोशन में, और हम इस प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा कन्विक्शन क्या है। अगर आपका कन्विक्शन हाई है, आपकी क्लोजिंग फटाफट होगी। अगर आपका कन्विक्शन लो है, आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो आपकी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, मैं आपको कह रहा हूं। बिकॉज आपका कन्विक्शन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सबसे पहले लोग वो देखते हैं। जैसे हमारे माननीय एमडी हमेशा कहते हैं कि आपसे लोग तब ज्वाइन होंगे जब आप कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपने उनको प्रभावित कर दिया तो आप से ज्वाइन होंगे, लेकिन प्रभावित करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें कन्विक्शन, यू हैव टू बी कन्विंस विद द आइडिया दैट ये प्रमोशन काम करेगा। यू हैव टू बी कन्विंस फॉर द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट काम करेंगे। कॉन्फिडेंस इन द प्लान, कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, अगर ये सारी चीजें के साथ अगर आप प्रेजेंट करते हैं, तो 10 में से 10 भी आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी गलती जो लोग करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। मैं बार बार हमेशा मैंने कई ट्रेनिंग्स में कहा है कि इन नेटवर्क मार्केटिंग, व्हेन यू स्पॉन्सर समबडी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, स्पॉन्सरिंग का मतलब ही है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन। सो यहां पर कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ आप जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि तेरे पास जो प्रोडक्ट है, राइट, वो तो चिंता मत कर यार, हम मीटिंग्स करेंगे जिससे तेरे प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएंगे या शेयर आउट हो जाएंगे।
तेरे पास लोग नहीं है, तू चिंता मत कर, तेरे साथ हम होम मीटिंग्स करेंगे, तेरे साथ हम वन ऑन वन करेंगे, तू बोल वहां हम काम करेंगे। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिखानी चाहिए, ताकि अगला सोच सके कि अगर ये आदमी इतना कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली द बिजनेस इज वर्थ ट्राइंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हमें वो लेवल तक जाना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर बात हो रही है हमें बिलियन डॉलर टर्नओवर तक जाना है, बट उसकी तैयारी हमको आज से करनी पड़ेगी। अगर हम हमारा एटीट्यूड, अगर हमारी सोच हम रखेंगे कि हम बेटर करना चाहते हैं, हमारी कन्विक्शन वाली सोच होगी, कॉन्फिडेंस वाली सोच होगी, अगर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रस्ट के साथ हम बहुत बड़ा बिजनेस कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूं मैं आपको कि ये जो पर्टिकुलर प्रमोशन है, ये सिर्फ एक बहाना है, एक एक्सेलरेटर है जो आपके बिजनेस को एक्सेलरेट कराएगा। राइट? सही मायने में मुझे जो समझ में आता है, सही मायने में तो ये आपके बिजनेस की नींव मजबूत करेगा। जी हाँ, आपको प्रोपेल करेगा आगे प्लान बताने के लिए। सो ये एक बहाना है, इससे आप इजीली लोगों तक पहुंच सकते हैं। ज्वाइन देम इमीडिएटली। लोग कहते हैं कि ये समय ज्वाइन करना है, हमें ये प्रमोशन अच्छा लगा है, ज्वाइन देम इमीडिएटली। और उसके बाद का मंत्रा है, उसके साथ इमीडिएटली होम मीटिंग ऑन द स्पॉट प्लान करो। घर जाके नहीं, फोन के ऊपर नहीं, वंस दे ज्वाइन इट, चलो मुझे तुम्हारा बिजनेस को स्टार्टअप करना है, आपके घर पे होम मीटिंग कब रखना है, जहां पर आप को उनको बेसिक इनविटेशन सिखा दो और 4-5 लोगों को वो इनवाइट करके उस घर में उनकी होम मीटिंग होनी चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू नीड टू टेक फॉर दैट पर्टिकुलर डाउनलाइन, बिकॉज उनको थाईलैंड जाना है और आप उनको थाईलैंड जाने में मदद करते हैं। और उनके साथ अगर ये स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट्स, वो भी रेडी है, आप भी रेडी है, इसके रिजल्ट्स अमेजिंग आ जाएंगे। The main idea to help new people to do 300 PV is to immediately plan a home meeting so the 300 PV products can be shared in that meeting. जी हाँ, 300 पीवी का अगर हम उनके साथ ज्वाइनिंग करवाते हैं ऑन द स्पॉट, क्योंकि वो प्रमोशन में उसको उसको थाईलैंड जाना है, उसके बाद उसे उसे कहिए, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन से कहे कि 300 पीवी का माल है ना, अगर तेरे से नहीं बिक जाए ना तो तू मेरे को वापस दे देना। ये कन्विक्शन होनी चाहिए। आप जब किसी दुकान में जाते तब कहते हैं ना दुकान वाले, अगर अच्छा नहीं लगे या अगर आपका कपड़ा खराब निकले तो आप बेशक वापस लेके आने। कितने लोग वापस लेके गए मुझे बताइए? हजारों में से एक आदमी वापस आया होगा। बट बात यह है कि जब वो कन्विक्शन से कहता है, वो कॉन्फिडेंस से कहता है, तो वही कॉन्फिडेंस हमको अच्छा लगता है। कपड़े की क्वालिटी के बारे में तो हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है ना, तो इसी तरह वो पर्सन को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, बट व्हेन यू स्टे विद दैट कन्विक्शन, व्हेन यू से विद दैट कॉन्फिडेंस कि अगर तेरा माल नहीं बिका ना, या तेरा अगर अगर प्रोडक्ट्स तेरे नहीं जाते, तो बेशक मेरे से पैसा वापस ले लेना, बट मुझे तू एक मीटिंग दे। वो कन्विक्शन से जब आप कहते हैं तो काम होना शुरू हो जाता है। सो इफ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अर्न ट्रस्ट, ट्रस्ट अर्न करना है ऑफ योर न्यू मेंबर, देन क्लोजिंग विद 300 पीवी वोंट बी अ चैलेंज। जी हाँ, ये जैसे ये एमसीआई बोनस आया, लोगों का ये कहना था कि 300 पीवी में हम कैसे करें। भाई साहब, लोग 3-3 हजार पीवी की ज्वाइनिंग करवाते हैं, लोग 4-4 लाख के, लोगों ने इसके पहले 2-2, 3-3 लाख के गद्दे भी बेचे हैं। उन्हें भी तो तकलीफ होती होगी ना, उन्हें भी तो दिक्कत आती रहेंगी। बट द स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, तो चीजें चीजें आपके फेवर में होने लगती है, चीजें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका फाउंडेशन एक स्ट्रांग हो जाता है जब आप उनको कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। सो ऑल यू नीड इज 2 to 3 गुड पीपल टू स्टार्ट। 2 से 3 लोग भी अगर अच्छे मिल गए, सोचिए 2 से 3 लोगों को अगर आप थाईलैंड के लिए मोटिवेट करते हैं, तो 90,000 पीवी आपका फिक्स हो जाता है। 3 लोगों, अगर थाईलैंड थाईलैंड के लिए आप 3 लोगों के साथ काम करते हैं। जी हाँ, ये पूरा महीना है, और इस महीने में अगर आप लोगों के साथ कमिटमेंट के साथ काम करते हैं और होम मीटिंग्स के थ्रू काम करते हैं, तो ये टारगेट लेना और ये टारगेट अचीव करना, कोई भी इसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी चैलेंज है। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू टेक अ डिसीजन, you need to take the responsibility, and you need to create that trust factor with you and with your downline. One home meeting can lead to series of home meeting and create confidence and trust in the new joining. जी हाँ, आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब आप उसको समझाते हैं कि इसी तरह की होम मीटिंग के थ्रू हम तेरा बिजनेस बढ़ाएंगे,
और तेरे पेयर्स के ऊपर काम करेंगे तो एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यानी कि एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, दूसरी मीटिंग से तीसरी मीटिंग, यानी कि आपको सीरीज ऑफ मीटिंग मिल जाती है। और जब आप होम मीटिंग करते हैं ना, तो होम मीटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि होम मीटिंग के अंदर ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बहुत ही उंडा ट्रस्ट बैठ जाता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाती है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, और एक होम मीटिंग करने के लिए आपका कोई ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं लगता है। और होम मीटिंग के अंदर सही मायने में अच्छी क्लोजिंग आपको मिल जाती है। यू कैन ऑल्सो प्रमोट टू द न्यू ज्वाइनिंग्स द करंट प्रमोशन एंड मोटिवेट हिम टू अचीव 5 पेयर्स। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि जो भी नए लोग, 2 या 3 अच्छे लोग मिल गए, उनके साथ बैठिए, उनके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप उनको मोटिवेट करिए थाईलैंड जाने के लिए या गोवा जाने के लिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प देम टू अचीव हिज टारगेट, यू विल ऑटोमेटिकली अचीव योर्स। जी हाँ, जो लोग गोल्ड के ऊपर है उनका तो पीवी बढ़ने वाला है, तो उनका डेफिनेटली टारगेट कंप्लीट होगा। लेकिन जो लोग गोल्ड से नीचे है और ये प्रमोशन करना चाहते हैं, तो अगर वो अपने डाउनलाइन को मोटिवेट करते हैं तो उनका एक लाइन तो हो जाता है। बाकी के लाइंस में अगर वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, होम मीटिंग्स वहां पर हो जाती है, तो वो भी अपने प्रमोशंस के अंदर ये पार्ट लेके प्रमोशंस को अचीव कर सकते हैं। द आउटकम, मैं वापस कहता हूं, बार बार मैं कहता हूं, द आउटकम विल नॉट बी द ट्रिप और द वाउचर, इट विल बी अ बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन दिस बिजनेस। जी हाँ, जब नए क्लास ऑफ लोग आते हैं ना, नए लोग जब आते हैं, तो हमारा बिजनेस के प्रति कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, हमारा ट्रस्ट बढ़ जाता है अपने ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर और कंपनी के ऊपर। और जब ये प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर से आपका जो लीडरशिप मोल्ड है ना, लीडरशिप की तरफ जाने वाले जो जो लोग हैं, ये उनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। दे आर इन द प्रोसेस टू बिकमिंग अ बेटर लीडर देन व्हाट दे आर राइट नाउ देमसेल्फ। सो द आउटकम ट्रिप नहीं है ये प्रमोशन विमोशन। इतना पैसा आप कमा सकते हैं ना कि हर महीने गोवा, हर महीने थाईलैंड जा सकते हैं। सो ये वाउचर, ये उसका आउटकम ही नहीं है, बट कॉन्फिडेंस, या जी हाँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है, आपकी नई टीम बढ़ जाती है। इसको तो हम पैसे में तोल ही नहीं सकते ना, इसकी वैल्यू क्या है, ये अनलिमिटेड वैल्यू है, राइट। सो मैं यहां पर यही कहूंगा कि कुछ लोग अभी भी हो गए कि यार प्रमोशन क्या, ये सब तो प्रमोशन काम नहीं करेगा। कुछ हमारे लोग इतना सारा एनालिसिस भी करते हैं, उन्हें लगता है कि यार ऐसा प्रमोशन होता तो अच्छा होता, कंपनी अगर सबको डाल देती तो अच्छा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें ब्लाइंड ट्रस्ट रखना है कंपनी के ऊपर। ठीक है, शायद हमारे हिसाब से चीज ना हो, लेकिन जब हम ब्लाइंड ट्रस्ट रखते हैं ना कंपनी के ऊपर, तो चीजें हमारे फेवर में आना शुरू हो जाती है। बिकॉज जब आप ट्रस्ट रखते हैं तो आपका डाउनलाइन भी ब्लाइंड ट्रस्ट रखता है। और अगर हम ट्रस्ट के हिसाब से काम करेंगे, आपने कंपनी को देखा है, इतने साल हो गए कंपनी को, कंपनी ने जो भी डिसीजंस लिए हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ्रंट में लेके ही लिए। अगर कंपनी का अगर कोई मोटो होता या और कोई ऑब्जेक्टिव होता, तो शायद ये प्रमोशन आता ही नहीं है। जी हाँ, कंपनी आज भी सोच रही कि किस तरह हमारी सेल बढ़ सके, हमारी यानी कि हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स की, किस तरह से हमारे सेल्स बढ़ सके, क्या करने से प्रमोशन चलेगा, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें तो कंपनी कर रही है। दे माइट बी रॉन्ग समवेयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर राइट। सो हमें क्या करना है कि हमें हर एक प्रमोशन में अचीवमेंट तो लेना ही है ना, हर एक प्रमोशन में अपने आप को अचीव तो करके ही दिखाना है। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो कहेंगे यार ये सब प्रमोशन काम नहीं करता है, वो भी सही है। मैं तो कहता हूं जो सोचता है ये सब काम नहीं करता है, उनके लिए काम करने वाला ही नहीं है। और जो सोचता है कि ये प्रमोशन मेरे लिए है, मेरे टीम के लिए, मैं काम करूंगा उसमें, उसका काम हो जाता है। तो तो जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। बट मेरा ये मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कि अगर कोई भी इस तरह का प्रमोशन आना आता है, तो हमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। अगर एनर्जी देंगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी बाहर भी निकलेगी। लेकिन अगर आप न्यूट्रल रहेंगे या एनर्जी नहीं देंगे, तो मुझे मालूम है आउटकम उसका जीरो है। तो जो लोग ज्यादा एनालाइज करते हैं, ज्यादा ज्यादा बार सोचते हैं, सोचने दो उनको, करने दो, वो उनका काम है। बट मेरा तो ब्लाइंड ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर कि भाई कंपनी जो भी करेगी, वी आर रेडी फॉर इट, एंड वी विल ऑलवेज वर्क विद अलाइनमेंट। कंपनी के अलाइनमेंट के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हम भी ग्रो करें। देखो, $1 बिलियन तो कंपनी करने ही वाली है, इट इज विद यू और विदाउट यू। अगर आप आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम।
अगर आप कहेंगे मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, हमारे पास बहुत सारे और नए लोग भी आएंगे जिनको कंपनी कहेंगी वेलकम। सो इट इज विद यू और विदाउट यू, इट इज वेरी सिंपल। अब बात यह है कि क्या हमें स्टैंड लेना है, क्या हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है। मैं फिर से कहता हूं, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। बट अगर आप सही मायने में अगर हमें मानते हैं तो आई थिंक सो वी शुड ऑलवेज पार्टिसिपेट एंड स्टे इन अलाइनमेंट with the company. The promotion only works when you work and take a decision to make it happen. Yes, it will only work when you take a decision to make it happen. So decide now and build a solid business for the month of July. Decision ले लीजिए कि मुझे 5 पैर करने हैं, 15 पैर करने हैं, 25 पैर करने हैं या 50 पैर करने हैं। Whatever you decide, take a decision. नए नेटवर्क के साथ काम कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए 15 पैर 25 पैर करने के लिए, उनका अपलाइन को मोटिवेट कीजिए थाईलैंड जाने के लिए, उनके अपलाइन को मोटिवेट कीजिए, दूसरे अपलाइंस को मोटिवेट कीजिए गोवा जाने के लिए। अल्टीमेटली एवरीबडी विल अचीव समथिंग और द अदर। जैसे मैंने कहा, जितनी भी एनर्जी देंगे वो एनर्जी का कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी बाहर निकलने वाली ना। इट माइट बी इन टर्म्स ऑफ द प्रमोशन, इट माइट बी इन टर्म्स ऑफ मनी, इट माइट बी इन टर्म्स ऑफ लेवल, इट माइट बी इन टर्म्स ऑफ recognition. But when you put something, then only you will able to get something out from there. But if you don't put anything, I'm sure nothing is going to come out from there. So put that energy in a positive way. पॉजिटिव चीजों में एनर्जी डालो, कंपनी के साथ अलाइनमेंट पे चलिए ताकि हम इस प्रमोशन का भरपूर फायदा उठा सके और एक सॉलिड फाउंडेशन जुलाई मंथ के लिए हम सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करें, ताकि हमारी जो $1 बिलियन की सोच है उसके हम हिस्से बन सके। राइट। सो विद दैट मुझे यही कहना है आप सब लोगों से कि यस, ये प्रमोशंस हम सब के लिए है। इस प्रमोशंस में हम जितना काम करेंगे उतना हम बेहतर बन सकेंगे, अपने बिजनेस को नए फाउंडेशन के ऊपर लेके जा सकेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट मोर बेटर द फाउंडेशन, बेहतर आपकी लीडरशिप होगी और साथ साथ में हम बड़ा बिजनेस साथ में कर पाएंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आई एम श्योर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा कि मैं अपने डाउनलाइन को प्रोडक्ट वाउचर के लिए मोटिवेट करूंगा, उसके अपलाइन को मैं गोवा के लिए मोटिवेट करूंगा, उसके अपलाइन को मैं मोटिवेट करूंगा कपल टूर के लिए गोवा के लिए, और उसके अपलाइन को मैं मोटिवेट करूंगा थाईलैंड जाने के लिए। इट वर्क्स लाइक अ टीम वर्क। राइट। सो गेट रेडी एंड लेट्स मेक जुलाई अ फैंटास्टिक मंथ। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।